The COVID 19 pandemic in India was accompanied by a series of state mandated lockdowns, which severely limited economic activity of informal workers across sectors and trades. One among these trades were domestic workers, who were no longer welcome in their place of work and suffered high pay cuts. Limitations on earning caused detrimental effects on other spheres of life, particularly rental housing. Domestic workers typically work in multiple households and have to make multiple trips to their places of work. They do this while also juggling unpaid care work in their own households. To optimize time and travel, domestic workers prefer living close to their places of work. Rental accommodation is thus the most common form of accessing housing in proximity to their workplaces, which means rent is a fixed monthly expense for most domestic workers. This fixed expense also makes for a considerable amount of their monthly income. A study of income and expense of domestic workers in Rajasthan suggests that they spend close to 40% of their income on rent. In comparison, thumb rules of affordable housing suggest no more than 30% of monthly income to be spent on rent. This additional 10% weighs much more heavily in the income bracket domestic workers fall in. With no earnings coming in and with rent being a fixed and large expense, housing for domestic workers in Jaipur became an issue very quickly into the lockdown. Much of low income rental housing stock accessed by domestic workers in Jaipur is owned and operated by individual landlords, with the state having no financial stake. While some landlords use it as a business model, many are dependent on it for their own subsistence. During the pandemic, relief by state and non state actors focused predominantly on ration. The only measure the state took regarding rent was to ask landlords to forego rent of tenants. This only offsetted the financial burden from the tenant to the landlord, without extending financial support to either party. Rajasthan Mahila Kamgar Union (RMKU) is a domestic workers' union in Rajasthan with close to 16,000 members. RMKU frontlined through the waves of the pandemic to provide relief of various forms to domestic workers across the state of Rajasthan, particularly in Jaipur. This union, which is centered primarily on livelihood, soon found itself maneuvering and negotiating conditions of rental housing for its members during the pandemic alongside ration and labor. बहनें हमारी जो काम कर रही थी, पैसा नहीं था, किराया बढ़ता जा रहा था। काफ़ी स्तर पे 30, 40, 50 हज़ार तक किराया हो गया। उसमें महिलाएं खुद ने बोला, भाई राशन दे दिया, राशन खा लिया, बचत दी, उसे हमने कर लिया, पर अब जब भी किराया का आएगा तो हम क्या करेंगे। तब उस पे हमने फिर बैठ के प्लान किया और आगे कदम। तो ये हमको ये कैसे लगा कि ऐसा लग रहा था उस टाइम जब कि अभी खाने से ज़्यादा ज़रूरत यूनियन को इस आवास को लेके ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई अभी दिक्कतें ये इस तरह की आ रही हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या करता यूनियन ने भी विचार किया आपस में मिलके कि क्या करें। During the second lockdown of domestic workers, the issue of rent went beyond housing as its financial stress of rent started bleeding to other spaces, causing transversal detrimental effects. जो किराया है वो तो देना ही देना है कि मैं रहूंगी कहाँ यदि मैंने किराया नहीं दिया तो बाकी की चीजें तो मेरी आवास पे ही टिकी हैं कि मैं जाऊं कहाँ। तो वो बचाना है प्राथमिकता, तो वो बचाना है तो वो कटौतियां कहाँ से करेंगे, तो वो इन जगहों से कटौती करके और हमने किराए में डाला। हमने ये देखा कि उनके एक तो बच्चों की एजुकेशन में कटौती हुई, सबसे पहला वो हुआ, और खास करके लड़कियों की पढ़ाई रुक गई बीच में। जिन लड़कियों को पढ़ा रहे थे लगातार उनको रोक लिया गया, एक तो वो असर हुआ। दूसरा हमने ये देखा कि उनके जीवन में कुछ खाने पीने का खर्चा काफी कटौती किया उन्होंने। जैसे पहले एक सब्जी और एक दाल खा रहे थे तो वो सिर्फ दाल पे आ गए या एक सब्जी पे आ गए, तो बीच में कुछ नॉनवेज खा रहे थे वो पूरा उनका बंद हो गया। इस तरह की चीजें उनके ऊपर आई। तीसरा ये आया कि जो एक्स्ट्रा कुछ खर्चा हो रहा था, जैसे शादी ब्याह में खर्चे हो रहे थे, उसके अंदर कटौती हो गई। इस तरह की कटौतियां थी। तीसरा जब लॉकडाउन आया तो उनको फुल फेस तो काम मिला भी नहीं था ना, तो वो मतलब 3 साल का जो किराया है वो इतना बढ़ गया था। अब मालिकों को अब ज़्यादा कर भी नहीं सकते कन्वेंस, इतना कितना वो उन्होंने कहा किस्तों में दे दो, तो
अब जो उन्होंने बांधी किस्त, उससे भी वो 100-200 कम और भी करवा रहे थे, पर वो देना तो कुछ कुछ पैसा तो देना ही पड़ता है ना उनको। तो इस वजह से वो अपनी इन चीजों पे कटौती करी उन्होंने। Through its experience of its first lockdown, the union anticipated rental dues to become a problem and strategized in advance to managing it. फर्स्ट वाला लॉकडाउन खत्म होते होते सिचुएशन का पता लग गया था कि यदि दोबारा हुआ इस टाइप का तो शायद सबसे पहली समस्या यही आएगी कि मकान से बात करेंगे। नहीं, इसमें हमारी ऑफिशियली भी मतलब मीटिंग हुई। उसमें हम ये देख रहे थे कि इस तरह की समस्याएं सामने पेश होगी, क्योंकि हमको भी पता था कि भाई अब पैसा नहीं है तो मालिक तो पैसा ही मांगेगा, वो भी करेगा, ऐसे भी करेगा। तो उसका हम पहले से ही ये था कि कुछ महिलाओं को हमने मतलब ट्रेनिंग करके और उनको थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो वो समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। The union organized themselves to work on this through multiple strategies. और ये हमारा काफी ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोगों ने प्लान किया था। जब ये हाउसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने ये पूरा हम ऑफिशियली मीटिंग हमने की, हमारी पूरा जो कोऑर्डिनेटर जो लीडर है उनके साथ की। फिर हम लोगों ने जूम पे उन महिलाओं से भी बात की कि जो दिक्कत आएगी तो हम कैसे कैसे उसको डील करेंगे। तो महिलाओं की तरफ से ये भी आ रहा था कि हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, हमको उनको डर लग रहा था कि कहीं हम बात करें तो हमको निकाल दे मकान से, तो वहां पे फिर हमारा रोल था ज्यादा। तो हम लोग डायरेक्टली कर पा रहे थे और हम लोगों ने फिर डायरेक्टली काफी सारी जगह हम लोगों ने इंटरवीन किया उस दौरान कि हमको जहाँ लग रहा था कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर हमारे ये जो एरिया लीडर है इन्होंने शुरू किया कि हम लोग चलो हम वहाँ पे दिक्कत लग रही है तो हम थोड़ी बातें डालें। हमने गवर्नमेंट की चीजें उठाई, उन्होंने घोषणाएं की वो उठाई। तो ऐसे ही काफी सारे मालिकों से जा के बात करी। तो फिर महिलाओं ने कहा कि ठीक है हम दे देंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम 1 साल में चुकाएं, कैसे जैसे हमारा काम लगेगा ऐसे हम आपका किराया चुकाएंगे। तो इस पे भी मालिकों ने फिर कहा कि अगर आपके यूनियन वाले भी सब लोग कह रहे हैं तो हम लोग इस पे बात करते हैं, क्योंकि अगर कोई यूनियन का वहाँ पे प्रतिनिधि बोल रहा है कोई बात तो उसका एक अलग से प्रभाव पड़ता है मालिकों पे। The influence union had was critical in mediating with the landlord. Other factors that worked in the union's favor were the rapport of residents with their landlords and instances where certain landlords were generous and agreed with the union's stand. When negotiations did not work, domestic workers had to find other ways to maneuver the issues of rental dues. Towards this, the union trained and built capacities of their local leader members. इसमें ये था कि जैसे महिला वो यूनियन की जो लीडर महिलाएं हैं ना, हम उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे थे। तो वो ट्रेनिंग करने से वो खुद है ना पहलकदमी भी की है उन्होंने, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करी। कुछ है ना जो हमने जाके भी समझाया कि देख मैं ऐसे बोल रही हूँ, तुम भी ऐसे बोलो। Additionally, the union worked with other stakeholders like police and elected representatives, also lobbying on housing rights of domestic workers. कुछ जगह हमारी यूनियन की तरफ से पहल कदमी हुई। मैं जैसे किराया माफ के लिए मालिकों से बात करी, फोन पे भी किया, कुछ जगह जाके भी किया। और कुछ मालिकों का जो काम उनका घर चलता था किराए से, वो मालिक बोले कि आप लोग कह तो रहे हो हम माफ भी कर दे ये भी कर दे, पर हमारा घर कहाँ से चला। तो फिर हम उनको कहते उनको समझा के बोला कि भाई ये ना आप बीच का रास्ता निकालो। सबसे बड़ी ये है लॉकडाउन में भला ही 1-2 महीने का मकान किराया छोड़ दिया हो, लेकिन पानी बिजली का जो बिल का है, बिजली का उस टाइम पानी का नहीं आ रहा था, बिजली का बिल किसी ने नहीं छोड़ा। उसका कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो, वो बिजली का बिल वो किराएदार को देना पड़ा। इसके अंदर ये था कि जो किराए को लेकर के ये महिलाएं मकानों में रहती हैं उनको लेकर के हमको बहुत ज्यादा दमन था। और वो ये था कि यदि हम ज्यादा सरकार के साथ या हम प्रशासन के पीछे पड़ते हैं और हम ज्यादा इंटरफेयरिंग करेंगे तो हो सकता है कि एक माहौल दूसरे टाइप का बन जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रवासी हैं तो वो ये कहेंगे कि नहीं आप यहाँ से खाली कर दो, ये एक दबाव आ सकता है। और ये हमने देखा कि हमारे जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उस साइड से भी हम पे दबाव आ रहा था कि ज्यादा वो करना नहीं है, सिर्फ जहाँ दिक्कत है वहां हम बात करेंगे। तो एक पॉलिसी लेवल पे जिस तरीके से करना चाहिए था वो हम लोग बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए उसके अंदर। और वो डर था दोनों ही साइड का, हमको भी डर था कि कहीं इनको रोड पे न डाल दे,
और उनको भी डर था कि हमको बाहर निकाल देंगे तो हमको कोई मकान भी नहीं देगा। और ऐसी स्थिति है कि अभी यदि कोविड के बाद भी मेरा खाली हो गया तो मुझे जल्दी से मकान नहीं मिल रहा था, ये स्थिति भी थी। और ये बहुत बार परिस्थितियों पे निर्भर करता है कि किस टाइम आपको ज्यादा प्रेशर लगाना, किस टाइम नहीं लगाना है। हाँ। यदि वो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी है, उस टाइप की हरकतों पे आते हैं तो फिर हमको सहारा भी लेना पड़ता है, उस टाइम पुलिस का भी सहारा लेना पड़ता है। और कई बार वो ये होता है कि ठीक है आपस में बात से ही मामला खत्म हो रहा है तो वो भी हो जाता है कि उनके लिए कोई प्राथमिकता थी नहीं कि किराए के में इंटरफेयरिंग करें। वो ये मानते हैं कि जिसने मकान लिया है और जिसने दिया है वो दो के बीच में ही एग्रीमेंट है, हमारा कोई रोल नहीं है। तो यदि उस तरह का होता तो कर सकते थे। और यूनियन के पास इतना पावर नहीं है कि वो अपना कोई कानून उनके ऊपर थोप दे ले जाकर के। हम सिर्फ इंटरफेयर कर सकते हैं और जहाँ पे समस्याएं आए तो वहाँ हम जाकर के एक समझौते की भूमिका में हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट की पॉलिसियां नहीं है और वो नहीं सोच रही है, नहीं करना चाहती है, तो साइड से आप थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं जो स्थितियां बन रही हैं, पर बहुत ज्यादा परिवर्तन हम नहीं ला सकते हैं उसके बिना। इसमें सबसे बड़ी एक समस्या है कि ये यदि ये जो कामगार हैं ये सोशल सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए होते और ये कहीं रजिस्टर्ड होते तो बहुत आसानी से हम लोग इंटरफेयरिंग कर सकते थे और हम सरकार के ऊपर दबाव भी बना सकते थे कि आप इनके लिए जो एक राहत पैकेज घोषित किया है वो इन तक पहुंचे। हाउसिंग को बिल्कुल साइड किया गया है। पहले हमारी पॉलिसी में होता था कि रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजें होंगी तो ही हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। वो कहीं धीरे धीरे एक साइड कर दिया और वो वहां से निकाल ही दिया गया। ज्यादातर तो आवास को देखते ही नहीं है। शहर कोई अपने आप में बनता नहीं है, बाहर से लोग आएंगे बसेंगे फिर वो बनेगा। लोग आएंगे काम करके चले जाते हैं, पूरा एक मौसम आधारित काम भी करते हैं, इस टाइप का ये पूरा चलता है। तो हमारी जो सरकारों की और जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है उसका कोई प्लान नहीं है इसके प्रति। हमने ये बहुत गहराई से देखा, तीनों फेज में हमने देखा। तो न तो उनकी सोच वहां तक जाती है, न वो उसके ऊपर काम करना चाहते हैं और वो देखना ही नहीं चाहते कि क्या हो रहा है। कि हमने ये देखा कि किराए के ऊपर बहुत ज्यादा बातें ही नहीं हुई, सरकार की भी नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट को भी नहीं पता है कि हमारे शहर में कितने तरह के रेंटल हाउस है और वो किस किस तरीके से जाते हैं, लोग कैसे खोजते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से उनको रखा जाता है। शायद मैं मानती हूँ कि उनको नहीं होगा इस तरह का अनुमान। और यदि हम कोई रिसर्च करके उनको देते हैं और सामने रखते हैं और उनको बुलाते हैं उसके अंदर, तो उनके ऊपर एक प्रभाव अलग तरह का पड़ेगा। उसके अंदर हम लोग हमारी एक मोटी समझ बनी है किराए को लेकर के, और वो समझ ये बनी है कि हम लोग सबसे पहले तो ये देखें कि कितने तरह के मकान हैं, कितने तरह के मालिक हैं। वो देख करके हम लोग एक अपना एक विश्लेषण ले करके यूनियन की बतौर, और हम लोग जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको दे सकते हैं, सरकार को दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको इंटरफेयर करने की जरूरत है। दूसरा ये कि जो सिर्फ बिजनेस ही करते हैं उनके ऊपर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं इसके अंदर। और एक जो है जो अपनी आजीविका चला रहा है तो उसको आप थोड़ा राहत दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका हल खोज सकते हैं। मकान मालिक है वो एक स्टेक होल्डर है, जिन घरों में काम करने जाती हैं वो जो नियुक्ता लोग हैं वो एक स्टेक होल्डर है, पुलिस एक है, प्रशासन एक है, फिर आपका पार्षद हो गया, एमएलए हो गया, फिर उस इलाके का एमपी हो गया। इसके अंदर हमको एक तो एकेडमिक जो लोग हैं जो इस चीज को बेहतर रिसर्च करके समझ सकते हैं, तो उनकी एक जरूरत है। दूसरा हमको पॉलिसी लेवल पे भी जरूरत है कि वो फिर पॉलिसी लेवल तक कैसे जाए। फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो इसका भागीदार है, जो ले रहा है इसको, जो जिसके ऊपर ये आ रहा है, जो किराएदार है, उसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और उसको यदि अपनी चीजों के बारे में पता है कि मैं एक मकान ले रहा हूँ तो मेरे को कितना मिनिमम किराया देना चाहिए और मेरे को इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो यदि वो अपने राइट्स के बारे में जानता है तो काफी चीजें वहां पे हल होने की संभावना होती है। तो हमारा रोल तो यही है एज ए यूनियन कि हम लोग उनको अवेयर कराएं और दोनों साइड से अवेयर कराएं। जो ले रहा है उसको भी ये बोले कि भाई आप जहाँ रह रहे हैं तो आप बेसिक चीजें तो आप मांगिए इनसे, और उधर जो अथॉरिटियां हैं उनको ये बोला जा सकता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं तो उनके साथ जो अनावश्यक चीजें हो रही है तो आप उसके ऊपर कंट्रोल करिए।